All she is, I am. All her glory is my glory. All her shame is my shame. If she's done shameful things, then I'll have to stand her reproach. If she receives glory, I receive glory with her, because I'm identified with her. जो कुछ वो है वो मैं हूं, उसकी सारी महिमा मेरी महिमा है, उसकी सारी लज्जा मेरी लज्जा है। यदि उसने लज्जाजनक काम को किया है तो मुझे उसे उसकी निंदा के लिए खड़ा रहना होगा। यदि उसे महिमा मिलती है तो मुझे उसके साथ महिमा प्राप्त होती है, क्योंकि मैं उसके साथ पहचाना गया हूं। Now, to be identified, American has to stand for all America's shame, all America's glory, all she ever was, all she is, or what she will be. You are identified with it. अब पहचाने जाने के लिए अमेरिका को सारे अमेरिका की लज्जा के लिए खड़ा होना होगा। सारी अमेरिकी महिमा, वह सब कुछ जो वह हमेशा था, जो कुछ वह है या जो कुछ वह होगा, आप इसके साथ पहचाने गए हैं। Now, to be a true Christian, you have to be the same. We don't want to forget that. All that he was, I'm identified with him. I'm identified with him. Notice, and he is in me and I in him. अब एक सच्चे मसीह होने के लिए आपको वैसा ही होना होगा। हम उसे भूलना नहीं चाहते। जो कुछ वो था, मैं उसके साथ पहचाना गया था, मैं उसके साथ पहचाना गया हूं। ध्यान दें, और वे मुझ में है और मैं उसमें हूं। Notice, then every Christian, that's a real genuine Christian was with him when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy before there was a foundation of the world. We were identified in the immortal realms with God 10 million years before the world was ever formed. ध्यान दें, तब हर एक मसीह जो एक सच्चा वास्तविक मसीह है, उसके साथ था जब भोर के तारों ने एक साथ गाया था और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए थे। इससे पहले कि संसार की एक बुनियाद को डाला जाए, हम परमेश्वर के साथ अमरनहार आयाम में पहचाने गए थे। 1 करोड़ वर्ष पहले उस संसार को कभी बनाया गया था। I was back there with him. If we got eternal life, I was there with him. I was identified with him when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. मैं वहां पहले उसके साथ था। यदि मुझे अनंत जीवन मिला है तो मैं वहां उसके साथ था। मैं उसके साथ पहचाना गया जब भोर के तारों ने एक साथ गाया था और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाए थे। I was with him when he called Abraham at the age of 75 years old and his wife being 65 and told him they were going to have a baby. मैं उसके साथ था जब उसने अब्राहम को 70 वर्ष की उम्र में बुलाया और उसकी पत्नी 65 वर्ष की थी और उसे बताया कि उन्हें बालक होने जा रहा है। I was with him when he took his stand upon, thus saith the Lord, I'm going to have the baby. I stood with him. Every other Christian stood with him. मैं उनके साथ था जब वो यहोवा यूं कहता है वाले वचन पर खड़ा हुआ था, मुझे बालक होने जा रहा है। मैं उसके साथ खड़ा था। हर दूसरा मसीजन उसके साथ खड़ा था। I was with him when his temptations come. I was with him when he went up on top of the mountain to offer up Isaac. I was with him when the ram appeared. मैं उसके साथ खड़ा था जब उसकी परीक्षाएं आई। मैं उसके साथ था जब वो उस पहाड़ की चोटी पर गया इसहाक को बलि करने के लिए। मैं उसके साथ था जब मेढ़ा दिखाई पड़ा था। I was with Joseph when he was rejected of his brothers because he was spiritual and the rest of them was carnal. I was with him when he knew the reproach he had to stand by his own brothers. What he was, I am. Amen. What I am, he was. For we are all one in Christ Jesus. Amen. मैं यूसुफ के साथ था जब वे अपने भाइयों से ठुकराया गया था, क्योंकि वे एक आत्मिक था और उनमें से बाकी के शारीरिक थे। मैं उसके साथ था जब वह जानता था कि उसे अपने भाइयों के द्वारा निंदा किए जाने पर खड़ा रहना था। जो वह था मैं हूं, जो मैं हूं वह था, क्योंकि हम सभी मसीह यीशु में एक हैं। I was with Joseph in his grave. I was with him when he went to the right hand of Pharaoh. You had to be identified with him. मैं यूसुफ के साथ उसकी गुफा खड्डे में था। मैं उसके साथ था जब वह फिरौन के दाहिने हाथ पर चला गया।
आपको उसके साथ पहचाना जाना था। I was with Jacob that night when he wrestled all night with the angel. I wrestled myself. I know what he went through with, so I wrestled with Jacob the same time he did. For I am his brother. मैं उस रात याकूब के साथ था जो पूरी रात भर दूत के साथ मलूत को लड़ा। मैंने खुद से मलूत किया है। मैं जानता हूं कि वह किस बात से होकर गुजरा था। सो मैंने याकूब के साथ साथ मलूत किया। उसी समय पर उसने मलूत किया क्योंकि मैं उसका भाई हूं। I was with Moses when he went out into Egypt. I was with Moses at the burning bush. If you're a Christian, you are identified with them Bible characters. Don't forget it. मैं मूसा के साथ था जब वह मिस्र में चला गया। मैं मूसा के साथ उस जलती हुई झाड़ी पर था। यदि आप एक मसीह हैं तो आप बाइबल के पात्र के साथ पहचाने जाते हैं। इसे मत भूलना। I was with Moses when all the people turned against him. I was with Moses when he crossed the Red Sea. When he raised his hand and walked forward and the Red Sea opened, I was identified in Christ right then. And I was with Moses at that hour. मैं मूसा के साथ था जब सारे लोग उसके विरोध में हो गए थे। मैं मूसा के साथ था जब उसने लाल समुद्र को पार किया। जब वो हाथ उठाकर और आगे बढ़ा और लाल समुद्र खुल गया, मैं ठीक उस समय मसीह में पहचाना गया था और मैं उस घड़ी पर मूसा के साथ था। Whatever Christians has been, whatever believers has been, every believer now is identified with that same person. Whatever it is, you must be identified. Don't forget that. When you do, you got spiritual amnesia. You've forgotten who you are. जो भी वे मसीह में रहे हैं, जो भी विश्वासी रहे हैं, हर एक विश्वासी अब उसी व्यक्ति के साथ पहचाने जाते हैं। जो भी है, आपका पहचाना जाना अवश्य है। ये मत भूलना। जब आप भूलते हैं, आपकी आत्मिक याददाश्त खो चुकी है। आप भूल गए हो कि आप कौन हैं। Now, identified with him, with Moses when he crossed the sea. अब उसके साथ पहचाना गया, मूसा के साथ जब उसने समुद्र को पार किया। I was with Elijah in the days of Ahab when they had to make a choice who they would serve, God or Balaam. We was with him on Mount Carmel when he had to make this choice. For we are identified in the body of the same God that he was identified in. So if we are identified in that body, then we must remember we were there with him. Right. मैं अहाब के दिनों में एलिया के साथ था जब उन्हें चुनाव को करना था कि वे किसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की या बलाम की। हम उसके साथ माउंट कार्मेल पे थे जब उसे इस चुनाव को करना था, क्योंकि हम उसी परमेश्वर के देह में पहचाने जाते हैं जिसमें वो पहचाना गया था। इसलिए यदि हम उस देह में पहचाने जाते हैं तो फिर हमें अवश्य ही याद होना चाहिए कि हम वहां पर उसके साथ थे। ये सही है। Now, I was with David when he was rejected by his own brethren. I was with David. You are too if you're a Christian. You have to be identified in his rejection. अब मैं दाऊद के साथ था जब अपने भाइयों के द्वारा अस्वीकार किया गया था। मैं दाऊद के साथ था, आप भी थे। यदि आप एक मसीह हैं, आपको उसको ठुकराए जाने में पहचाना जाना होना चाहिए। I was with the Hebrew children in the fiery furnace when the fire couldn't burn them because of the presence of the fourth man. I was with Daniel in the lion's den. I was identified in there when the angel of the Lord identified him in there. मैं इब्री बालकों के साथ था उस आग की भट्टी में जब वो आग उन्हें उस चौथे मनुष्य की उपस्थिति के कारण जला नहीं सकी। मैं दानियेल के साथ शेरों की मान में था। मैं वहां पहचाना गया था जब प्रभु के दूत ने उसे वहां पहचान दी। I most surely was with him at Calvary. I must be identified with him at Calvary. I must be there to a place that were not also was I identified with him at Calvary. I died with him at Calvary. मैं कलवरी में उसके साथ निश्चित रूप से था। मुझे कलवरी पर उसके साथ अवश्य ही पहचाना जाना था। मुझे उस एक स्थान पर होना है जो जहां मैं कलवरी में उसके साथ केवल पहचाना ही नहीं गया था, मैं कलवरी में उसके साथ मरा। Every Christian must die with him at Calvary. If you don't die with him at Calvary, you can't be none of his. I was there when he died. I died with him. And then I was with him when he raised up from the dead. हर एक मसीह को कलवरी में उसके साथ मरना ही होगा।
यदि आप उसके साथ कलवरी पे नहीं मरते, आप उसके कुछ भी नहीं बन सकते। मैं वहां पर था जब वह मरा, मैं उसके साथ मर गया, और तब मैं उसके साथ जब वो मुर्दों में से जी उठा। I come up on Easter morning with him in the resurrection. Whatever he did, I was right there with him. Every believer was the same. मैं पुनरुत्थान में ईस्टर की सुबह उसके साथ ऊपर आ गया। जो कुछ भी उसने किया, मैं ठीक वही उसके साथ था। हर एक विश्वासी उसी तरह से था। And now I am seated with him in heavenly places in Christ Jesus with all the powers of hell conquered through him. Every Christian believer was seated the same way because you have to be identified. और अब मैं मसीह यीशु में उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ। उसके द्वारा नरक की सारी सामर्थ पर विजय प्राप्त की है। हर एक मसीह को उसी तरह से बैठाया गया था, क्योंकि आपको पहचाना जाना है। Now I find myself in this last days with many of the believing Christians identified in his ministry. He is the same yesterday, today, and forever. I find myself in this day identified in his ministry. Do you find yourself that way, believing it, walking with it? अब मैं अपने आप को देखता हूँ इन अंतिम दिनों में बहुत से विश्वास करने वाले मसीह जन उसकी सेवकाई में पहचाने गए। वे कल, आज और युगानुग एक सा है। मैं अपने आप को इस दिन में देखता हूँ, उसकी सेवकाई में पहचाना गया हूँ। क्या आप अपने आप को इस तरह से नहीं पाते हैं? इसे विश्वास करते हुए, इसके साथ चलते हुए। Notice the works that he did. He said the believer would do the same thing. The works that I do shall you also. Then can you be identified with him? ध्यान दें, जो काम उसने किए, उसने कहा कि एक विश्वासी भी वही काम को करेगा। जो काम मैं करता हूँ, तुम भी करोगे। तब क्या आप उसके साथ पहचाने जा सकते हैं? And when the reproach comes on the word, can you stand the reproach like he did? See, identified with him. I was identified with him. फिर जब वचन पर निंदा आती है, तो क्या आप निंदा के लिए खड़े हो सकते हैं? जैसे वह खड़ा था, उसके साथ पहचाने गए, मैं उसके साथ पहचाना गया था। I was with him at the day of Pentecost. I was with the disciples up there, identified with them in the baptism of the Holy Ghost. I wonder if the church hasn't got amnesia so much now that some of them don't even believe there is such a thing as the Holy Ghost. See where the church has got a very bad case of amnesia. मैं पेंतिकुस्त के दिन उसके साथ था। मैं वहां पर चेलों के साथ था। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में उनके साथ पहचाना गया था। मैं सोचता हूँ, यदि कलीसिया की अब इतनी अधिक आत्मिक याददाश्त खो चुकी है कि वे उनमें कुछ यहाँ तक कि विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज भी है। देखिए कि कलीसिया कहाँ पहुँच गई है। ये बहुत ही बुरी आत्मिक याददाश्त के खोए जाने की बीमारी है। See, they have forgotten that that was Jesus Christ back there. They have forgotten what Jesus Christ was. They have forgotten. They thought he was just a lawmaker or a prophet or a good man. They forgot that he was God. They forgot that he's the same yesterday, today, and forever. And the church has got a bad case of spiritual amnesia. They have forgotten all these things. They don't understand it no more. देखो, वे भूल गए हैं कि वे वहां पहले यीशु मसीह था। वे भूल गए हैं यीशु मसीह क्या था। वे भूल गए हैं। उन्होंने सोचा कि वे सिर्फ एक नियम को बनाने वाला था, या भविष्यवक्ता, या एक भला मनुष्य था। वे भूल गए हैं वो परमेश्वर था। वे भूल गए हैं कि वे कल, आज और युगानुग एक सा है। और कलीसिया को आत्मिक याददाश्त खो जाने की एक बुरी बीमारी हो गई है। वे इन सब बातों को भूल गए हैं। वे अब इसे और नहीं समझ सकते। We must be with the disciples at Pentecost, identified with them. I was identified with Peter's sermon on the day of Pentecost in Acts the 2nd chapter. I heard what he said. I believed what he said. I obeyed what he said. Now I'm identified in the same thing. हमें पेंतिकुस्त में उन चेलों के साथ होना ही है, उनके साथ पहचाना जाना ही है। मैं पेंतिकुस्त के दिन पतरस के उपदेश के साथ पहचाना गया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मैंने सुना। मैं विश्वास करता हूं जो उसने कहा। मैंने आज्ञा का पालन किया है जो उसने कहा। अब मैं उस चीज के साथ पहचाना गया हूं। Don't get spiritual amnesia, because you identify yourself with something else. Stay right with that word. आत्मिक याददाश्त खोए जाने की स्थिति में ना रहें, क्योंकि आप अपनी स्वयं की पहचान किसी और के साथ देंगे। ठीक उस वचन के साथ बने रहो। We was with the church when it was commissioned by Jesus Christ in Acts the 16th chapter, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. I want to be identified there. All the world, to every creature.
these signs shall follow them that believe. Can be identified in that. हम कलीसिया के साथ थे जब यीशु मसीह के द्वारा यह आज्ञा दी गई थी, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में, तुम सारे संसार में जाकर और सुसमाचार को प्रत्येक प्राणी को प्रचार करो। मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान हो, वहां सारे संसार को, प्रत्येक प्राणी को ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे। वे जो विश्वास करते हैं उसमें पहचाना जाना होना चाहिए। Well, now, are you identified with that, or have you got some spiritual amnesia that you find out you don't believe those signs follow the believers? See, if you don't believe it, then you have spiritual amnesia. See, you've forgotten that God promised that. तो अब क्या आप उसके साथ पहचाने गए हैं, या अभी भी आपकी आत्मिक याददाश्त खोई हुई है? जो आप पाते हैं कि आप विश्वास नहीं करते हैं कि वे चिन्ह विश्वासियों के पीछे जाते हैं। देखो, यदि आप इसका विश्वास नहीं करते तो आपकी आत्मिक याददाश्त खोई हुई है। देखो, आप भूल गए हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। He said, "These signs shall follow them that believe." Don't forget it. You can't forget it to be a Christian. You must be identified with it. उसने कहा, ये चिन्ह उसके पीछे जाएंगे। वे जो विश्वास करते हैं, इसे मत भूलना। आप इसे भूल नहीं सकते और एक मसीह बने। आपकी इसके साथ अवश्य ही पहचान होनी चाहिए। You must be identified with St. John, the 14th chapter, the 12th verse. He that believeth with me, the works that I do shall he do also. Don't forget it. If you do, then you've got spiritual amnesia. You've forgotten who you are. You've forgotten what your testimony means. आपकी अवश्य ही संत यूहन्ना 14 अध्याय 12वें पद के साथ पहचान होनी चाहिए। वह जो मेरे साथ विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं उसे वह भी करेगा। इसे मत भूलना। यदि आप इसे भूलते हैं तो आपकी आत्मिक याददाश्त खो चुकी है। आप भूल गए हैं आप कौन हो। आप भूल गए हैं कि आपकी गवाही का क्या महत्व है। How about, he said, if ye abide me and my word in you, you can ask what you will and it'll be done for you. Are you identified there to believe it? That is the truth. इसके बारे में उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में, तुम जो चाहो मांगो कर सकते हो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या आप वहां पहचाने गए हैं? यह विश्वास करना कि यह सत्य है। Mark 11, when he said, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said. Can you be identified there to believe that that is the truth? If it hasn't, then you're getting spiritual amnesia. मरकुस 11, जब उसने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करें, लेकिन विश्वास करें कि तुमने जो कहा है वो पूरा होगा, तुम्हारे पास वो होगा जो तुमने कहा। यदि आप वहां पहचाने जा सकते हैं, ये विश्वास करना कि सत्य है। यदि ऐसा नहीं तो फिर आपकी आत्मिक याददाश्त खो चुकी है।